some of the hero words and afterwards move towards our grammatical portion. So let me write the idioms and hero words over there, and then we'll study the meaning and their sentences. So coming towards idioms, the very first one over here today, within and as of. Within and as of. Second one, having a nodding acquaintance with. What you wrote at first one? Within and as of. Third one is adamant to. Fourth one, address oneself to. Take advantage of. In the air. On the air. Okay, we have got 7 idioms over here, and apart from that, we'll look at 5 pair of words. The first one is abstain and refrain. Abstain or refrain. Pair of words are discussed either in confusion of sound or in confusion of meaning. Here there will be confusion of meaning, and we'll clarify because sounds are different. Then there is word adopt, adapt, and adapt. There are 3 words having one vowel difference, O, A, and E. So we'll see what's the difference in the meaning. Then accident and incident. Admission, admittance. Effect and effect. Pair of words. Okay, first of all, idiom. The very first idiom is within and as of, and it means escape by a hair's breadth. इसका मतलब क्या होता है कि बाल बच जाए. तो escape by a hair's breadth ये भी एक idiom नहीं है इंग्लिश में. तो इसका मतलब है कि बाल बच जाना. So he was within an ace of death. कि वो मौत से बाल बचा. He was, जैसा आपने क्या यूज किया इसके में was. बाकी सेंस वही है, बाल बचा किससे? Of death. He was within ace of death. तो ये इसका मीनिंग हो गया. Secondly, have a nodding acquaintance with. Acquaintance का मतलब होता है familiarity, किसी के साथ वाकफियत होना. लेकिन जब इसके साथ नॉडिंग लग जाए तो इसका मतलब फुल वाकफियत नहीं होना, बल्कि थोड़ी सी जान पहचान होना. ठीक है, किसी के साथ हल्की फुल्की नो होना, फुल डिटेल के बाद के साथ इंफॉर्मेशन ना होना. सो सिंपल सेंटेंस आप यू कैन से आई हैव अ नॉडिंग एक्विटेंस विद द प्रेसिडेंट. मेरी प्रेसिडेंट के साथ थोड़ी बहुत जान पहचान. सो नॉडिंग मीन्स ओवर हियर इन द मीनिंग ऑफ स्लाइड. वैसे लफ्ज़ी मतलब तो नॉडिंग का होता है हाँ में सर हिलाना, नॉड करना, लेकिन यहाँ पे नॉडिंग एज अ इडियम मीनिंग चेंज हो गया. इट मींस स्लाइट, थोड़ा सा एक्विटेंस होना, वाकफियत होना. अडैमेंट टू, अडैमेंट वैसे टू अगर ना भी हो तो वैसे अडैमेंट का मतलब होता है जिद्दी, जो अपनी बात पे अड़ा रहे. राइट, so you can say there is no use of discussion with him
because he is adamant to his opinion. वो अपने राय के साथ जुड़ा हुआ है. He is not going to change. So there is no use of discussion with him. उसके साथ discussion का कोई फायदा नहीं है. He is adamant to his opinion. वो अपने राय के साथ जुड़ा हुआ है. He is not going to change. Stubborn, S-T-U-B-B-O-R-N. Stubborn भी इसी का मतलब होता है. S-T-U-B-B-O-R-N. Stubborn, जिद्दी. Okay. Address oneself to. इसका मतलब है अपने आप को किसी काम पे लगा देना. To be busy with something. You should address yourself to business in order to get success. कि अपने आप को अपने काम में बिजी रखिए. यहाँ से business से मुराद कारोबार नहीं है बल्कि जो भी आपका काम है. So you should address yourself. जब भी oneself का मतलब आएगा तो जो हमारा pronoun यूज होगा उसके मुताबिक हमने इसको चेंज करना है. तो you हम यूज कर रहे हैं. You should address yourself to your business in order to get success. अगर कामयाब होना है तो अपने आप को अपने काम के साथ बिजी रखें. Take advantage of. किसी का फायदा उठा लेना. ठीक है. Take advantage of. So my opponent took the advantage of my mistake. मेरी गलती का मेरे opponent मेरे मुखालिफ ने सही फायदा उठाया. So my opponent took, second form हम past में use कर रहे हैं. My opponent took the advantage of my mistake. Okay, in the air, कोई भी चीज़ in the air होना, it means कोई चीज़ popular है. It is in the air. For example, you can say it is in the air that the war is imminent. यहाँ पे मैं एक word use कर रहा हूँ, imminent. Imminent का मतलब होता है forthcoming. इसका मतलब है going to happen in near future. तो कोई चीज़ थोड़ी देर के बाद होने वाली है. It's forthcoming. So it is in the air. कि ये rumor है. It is in the air. कि ये एक बात चल रही है जिसको कहते हैं कि इस चीज़ की हवा बनी एक आइडिया की. So it is in the air that the war is imminent. कि कुछ अरसे बाद जंग होगी. On the air ये तो मीडिया के सामने अपने आप को लाना. So just you can say the president will be on the air at 6 o'clock in the evening. जो भी आप चाहे यूज कर लें. So on the air, to be in front of media. So these are the 7 idioms. Hopefully they are clear to you. Anybody wants to ask meaning or clarify, you can. जी. Last two in the air कोई चीज़ पॉपुलर होना इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया में आना बातों में लोग एक चीज़ को फैला रहे हैं. लेकिन जब ऑफिशियली मीडिया के जरिए आया जाता है तो फिर ऑन द एयर होता है. वैसे कोई चीज़ सोसाइटी में लोगों के वर्ड ऑफ माउथ के जरिए लोगों के दिलों में बैठी जा रही है जिसे हम रोमर आमतौर पे कहते हैं कि अफवाह टाइप. ठीक है. तो अफवाह भी हो सकती है लेकिन कोई हकीकी बात भी हो सकती है कि कोई चीज़, लेकिन वो ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ. जैसे हम कह सकते हैं कि अभी ऑफिशियली 15 सितंबर से इंस्टीट्यूशंस पता नहीं ओपन हो गए या नहीं है, लेकिन ये अभी इट इज़ इन द एयर दैट द इंस्टीट्यूट वो ऑन द एयर हो जाए. That's very true. जो आम लोगों में बात फैली हुई है वो इन द एयर है, और जो ऑफिशियली जो अथॉरिटीज़ के जरिए एक ऑफिशियल तरीके से चीज़ पहुंचाई जाती है वो दैट इज ऑन द एयर. होपफुली दैट इज क्लियर टू योर कंफ्यूजन. राइट. तो इसका मतलब है ये भी कोई चीज़ अवाम में फैलना है, ये भी फैलना है, बट इट इज ऑफिशियली ऑन द एयर एंड इन द एयर लोकली और यू कैन से अनऑफिशियली. Right, now coming towards the confusing words. First of all, abstain और refrain दोनों का मतलब होता है परहेज करना, लेकिन किस तरह का परहेज करना. अगर तो कोई खाने पीने की चीज़ का परहेज किया जाए जैसे डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं हमें तो वो abstain होता है. The doctor ordered him to abstain from beer, wine, from sugar. जिससे भी वो परहेज करना उस तरह से. लेकिन ये जो refrain है ये किसी भी काम से रोके रखना. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल माई फादर asked me to refrain from odd people, strange people. मेरे बाप ने मुझे कहा कि अजनबी लोगों से रुके रहो, उनसे परहेज करो. ये खाने पीने वाला परहेज नहीं है. राइट. सो दैट इज द सेंस माई फादर asked me to refrain from. और इंटरेस्टिंगली दोनों वर्ड्स के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम इस्तेमाल होगी. abstain from and refrain from. जस्ट लाइक मैं कहता हूँ आई एम
refrained from meeting him, मैं उससे मिलने से रुका रहा। ये एक जनरल अपने आप को रोके रखना है। तो I am abstained from sugar because I am diabetic, so I am refrained from meeting something, ये खाने पीने के लिए नहीं। तो जब I am abstained from, ये खाने के लिए, from salty food या जिस वजह से you want to ask something। हम ये कह सकते हैं एक्सपीरियंसिंग में ये है कि किसी चीज़ से कम टेम्परेरी को छोड़ देना बाद में। हाँ। तो रिफ्रेन परमानेंट जो इसका हाँ, ये आप कह सकते हैं, लेकिन इवन इन दोनों चीज़ों के होते हुए भी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना वो स्टे नहीं होंगी। चाहे आप जब सही हो जाए, सेहतियाब हो जाए, तो फिर आप स्टेन नहीं होते, लेकिन जो रिफ्रेन होता है वो आपके लिए एक तरह से प्रिंसिपल बन जाता है। लेकिन फिर एक्टिविटी को कह सकते हैं किसी भी काम से या किसी भी चीज़ से नहीं, जरूरी नहीं कि कोई एक्टिविटी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। सपोज कि आपको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से बचे रहना। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कोई एक्टिविटी नहीं, इट्स अ नाउन। यस Sir, is abstain related to routine or habits? abstain, of course there is a need of regularity, routine आएगा। और एक अच्छा आपका हैबिट है या रूटीन है, लेकिन रूटीन और हैबिट में फ़र्क ये होता है कि जब कोई भी रूटीन इस लेवल पर पहुंच जाए कि वो आपकी नेचर बन जाए, तो देन इट इज़ कॉल्ड हैबिट। शुरू में आपने रूटीन अपनानी होती है and consciously you are worried about, लेकिन something which becomes unconsciously the part of your life, then it becomes habit। तो हम कह सकते हैं कि इससे हमने एक रूटीन शुरू करनी है और एक हैबिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हम सेहतियाब हो जाएंगे हो सकता है इन चीज़ों को दोबारा से शुरू कर सकते हैं, इससे हम परहेज किया हुआ। तो टेम्परेरी जैसे इन्होंने कहा, so that is also true। Okay। Sir, can you explain refrain again? Refrain means stopping ourselves from any activity or from anything। किसी भी चीज़, किसी काम से अपने आप को रोक के रखना। That is general and it is wide। जबकि abstain है, it is specific। It is specific to food items। सर, जिस तरह कोर्ट का ऑर्डर आता है, स्टे ऑर्डर आता है, इंजंक्शन ऑर्डर है, कि आप इसके स्टे या कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। जी, कंस्ट्रक्शन वो फैक्ट एग्जांपल है। हाँ हाँ। रिफ्रेन की बात आप कर रहे हैं? नहीं सर, ये जो आप बता रहे हैं रिफ्रेन की बात, अच्छा रिफ्रेन की बात करें तो वो जो अगर हम लॉ में चल रहे हैं तो वो टेक्निकल टर्म बन जाएगी, वो फिर आप ही बेहतर जानते हैं कि उसकी क्या सेंस हो सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एज इंग्लिश इन जनरल, ठीक है। तो वो जब कोई भी वर्ड जब किसी भी फील्ड या प्रोफेशन में जाके टेक्निकल एज अ टर्म यूज हो जाती है, तो फिर उसके साथ हम एसोसिएटेड मीनिंग अटैच करते हैं, ठीक है, फलां चीज़ के साथ, ठीक है। सिगरेट से मना करने के लिए जी, abstain। स्मोकिंग वो भी है रिलेटेड है इससे। बियर है, वाइन, ठीक है। abstain from sting, okay, sting also contains some ये क्या उसे कहते हैं, कैफीन जो कॉफी में भी होती है, इसी तरह स्टिंग में भी होती है, जिसमें वो एनर्जी बूस्ट करती है। ओके, आवाज़ कम आ रही थी। ओके, इट मीन्स आई हैव टू यूज माइक। ओके, सो maybe this was the reason you wanted to come closer। So you are welcome। अच्छा, दूसरा एक और रिफ्रेन का मतलब भी होता है जो हम लिटरेचर में यूज करते हैं एज अ टर्म। आप देखते हैं कि सॉन्ग्स होते हैं और सॉन्ग्स में एक लाइन रिपीट होती है, एक वर्स के बाद जो लाइन रिपीट होती है बार बार, तो उसको भी हम रिफ्रेन कहते हैं। तो अगर रुकने और परहेज करने में आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो पेपर में अगर ये आ जाता है तो आप सॉन्ग वाले मीनिंग में लिख लें, ठीक है। सो एवरीबॉडी वाज सपोज्ड टू स्पीक इन रिफ्रेन, कि हर एक शख्स रिफ्रेन बोलने के लिए उसे फर्ज कर लिया था, ही वाज सपोज्ड टू। तो आप वो सेंस भी यूज कर सकते हैं। रिफ्रेन इज अ लाइन विच इज रिपीटेड इन द सॉन्ग।
वो लाइन जो सॉन्ग में रिपीट हो उसे हम रिफ्रेन कहते हैं। ओके, नाउ कमिंग जी सॉन्ग, इट्स रिलेटेड टू सॉन्ग। सॉन्ग या पोइम, मतलब पोइम की जो भी फॉर्म होगी, चाहे वो एपिक हो, चाहे वो एलिजी हो, पोइम मुख्तलिफ किस्मों की होती है, हाइको हो। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। देयर आर 3 वर्ड्स। अडॉप्ट, ये तो आपको सिंपल पता होगा। अडॉप्ट मीन्स इख्तियार कर लेना, उर्दू में हम इसे कहते हैं इख्तियार कर लेना। जस्ट लाइक यू कैन से आई अडॉप्टेड लॉ प्रोफेशन, तो प्रोफेशन को, इस प्रोफेशन को मैंने अडॉप्ट कर लिया, इख्तियार कर लिया, दैट इज इन योर रेंज। व्हाट इज अडैप्ट? अडैप्ट मीन्स एडजस्ट करना जी, एडजस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेदर कंडीशंस में आप पाकिस्तान छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं तो वहाँ के वेदर कंडीशंस डिफरेंट होगी, बट यू विल हैव टू अडैप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इफ यू वांट टू लिव लॉन्गर। तो अगर नहीं अडैप्ट करेंगे, हर वक्त रोते रहेंगे, तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिप्रेशन। सो अडैप्टिंग मीन्स एडजस्टिंग, एडजस्ट। Just like our players have to play, cricket players have to adapt according to the situation, according to the pitches conditions of Australia. Practice इधर करते हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें adjust करना पड़ता है, adapt. That is adapt, A-D-E-P-T, adapt means expert. For example, I am an adept in linguistics. कि मैं linguistic scientific study of language है, एक सब्जेक्ट है, तो कोई भी बंदा जिस भी एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट हो हम उसे अडेप्ट कहेंगे। दैट इज एन एडजेक्टिव। ओके, सो अडॉप्ट इज अ वर्ब, अडेप्ट इज अ वर्ड, बट अडेप्ट इज एडजेक्टिव। ये क्वालिटी है, ये खूबी है उस बंदे की, दैट इज एडजेक्टिव। बट फर्स्ट 2 वर्ड्स दे आर वर्ब्स, एज अ वर्ब हम इनको यूज करते हैं। Next word is accident. Of course, accident is associated with something happening which is hurting or unbearable and it causes some damage, right? कोई भी चीज़ ऐसी जो हो जाए और जो damage दे वो accident है. For example, he lost his life in a car accident. तो उसने अपनी जिंदगी खो दी कार एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट तो सबको ही पता है, लेकिन इंसिडेंट का इसमें और उसमें क्या फर्क है? इंसिडेंट कोई भी जनरल हैपनिंग हो जाए, जैसे ये अभी एक मीटिंग हो रही है, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये भी एक इंसिडेंट है। हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर देयर, so we need to know about historical incidents to make our future प्लान, अपना फ्यूचर प्लान बनाने के लिए हमें पिछले हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स पे भी रिलाय करना पड़ता है। So इंसिडेंट्स मीन्स एनी हैपनिंग, कोई भी इवेंट, कोई भी वाकया, और एक्सीडेंट है जो बैड हैपनिंग हो जाती है। Sir, can we merge incident with any occasion? Any of course occasion, just like आपको मैंने कहा इसके लिए किसी भी हर्टिंग या अनलाइकेबल, डिसलाइकिंग चीज़ की जरूरत नहीं है। इवन के बर्थडे सेलिब्रेशन that was one of the incident in which I participated. आपने किसी कॉलेज फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, वो भी एक इंसिडेंट है, ठीक है? So incident means any happening, and it is not compulsorily damaging one, hurting one. Negative sense में हमने यूज कर दिया। Okay, what is the difference between admission and admittance? Admission तो एक lawful होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप कॉलेज नहीं भी गए, आपके पेरेंट्स, आपका कोई एल्डर वन जाके आपका नेम जो है वो फी वगैरह सबमिट करवा के आपका कार्ड वगैरह इशू करवा ले, फिर भी आपका एडमिशन हो गया। लेकिन एडमिटेंस क्या है? ये फिजिकली एंटर होना किसी भी जगह पर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड एडमिटेंस। So I got admission to Murray College course, तो मैंने Murray College में एडमिशन हासिल किया। तो इसका कंपल्सरी ये मतलब नहीं कि आप फिजिकली एंटर भी हो, वो एंटर हो जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन एडमिटेंस इट मीन्स फिजिकली एंट्री समथिंग समवेयर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई वेंट टू द हॉल बट रिफ्यूज एडमिटेंस। मैं हॉल में गया लेकिन मेरी जो एंट्री है उसको रिफ्यूज कर दिया, ठीक है? आई वेंट टू द आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग बट आई वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस। मेरी जो एडमिटेंस है वो रिफ्यूज कर दी। इट मींस एंट्री ओवर देयर। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। Sir, एक admission of FC जो होता है,
यस वो एडमिट से है, वो एक्सेप्ट, जी बिल्कुल वो एक्सेप्ट करने के मतलब में है, उस करने, हाँ। और ये भी कोई फिजिकल एंट्री नहीं है, वो एक वही बात बता दी कि एक एडमिशन चले इंस्टीट्यूशन का होता है और फैक्ट्स का भी हम कर लें, लेकिन जो एडमिटेंस है ये स्पेसिफिकली फिजिकल एंट्री होती है। जी जिस तरह ये दो वर्ड्स हैं एडिशनल, अगर आपको पेपर में आते हैं तो आप यहाँ पे मतलब सेंस चेंज कर सकते हैं, इस तरह एडिशनल फैक्ट्स के लिए एडिशनल जी 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 या एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग की रिफ्लेक्शंस हो सकती हैं, वो जो भी पॉसिबल रिफ्लेक्शन डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। चलें, सो वी आर गोना हैव ब्रेक फॉर अज़ान। लास्ट हियर अफेक्ट एंड इफेक्ट, ये मेरा ख्याल आपको बताना चाहिए, बहुत सिंपल है, लेकिन मैट्रिक में भी आप इसको पढ़ा होगा। Yes, that is very true. So verb and noun. So you can say with a it's a verb. आपने इसे as a verb use करना है, ठीक है? So e वाले को as a noun use करना है। तो जब भी आप e use करोगे, the effect of something, किसी चीज़ का असर है, ठीक है? For example, you can say the effect of coronavirus, COVID-19 is very critical all over the world. ठीक है, तो ये उसका जो असर है, the effect of something is very critical. क्योंकि effect है, ये as a verb use करेंगे कि my advice affected a great thing on his mind. कि मेरी advice वो भी C वाला होगा. My advice affected a great thing on his mind. तो affect as a verb हम use कर रहे हैं. तो his life is affected by the principles of his father. तो उसकी life affected, ये verb use कर, is affected as a passive tense of this. Economy of the world, right? The COVID-19 affected, ये एक ही हो जाएगा as a verb आप use कर रहे हैं. The effect of coronavirus is dangerous, hilarious, जो भी आप use करते हैं. So hopefully that is clear. अच्छा एक और चीज़ बता दूँ. हाँ वो मेरे पास। अच्छा ये जो ई वाला अफेक्ट है, ये हमने अभी कहा है कि ये नाउन के तौर पे हम यूज़ करते हैं और इसका मतलब असर ये है जो ए से अफेक्ट है वो वर्ब होगा, लेकिन ई के साथ जब ऐसा वर्ब हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब कंप्लीश होता है। कंप्लीश का मतलब कंप्लीट कर देना, सरअंजाम दे देना। तो एज अ वर्ब भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मीनिंग चेंज हो जाएगा। For example, I say that I affected my plans perfectly. इसका मतलब मैंने complete किए, वहाँ पे कोई असर करने का मतलब नहीं, ठीक है? So I affected my plans, my targets perfectly. जो भी आप यूज़ करते हैं, इसका मतलब है मैंने complete कर लिए, उनको accomplish कर लिया. Right. So that's all about vocabulary and phrases, how they are used. Now coming towards grammatical lessons, and we were talking about adjective phrase in the last class. Right, so there will be two things which we'll study. One is adjective as a word and adjective as a phrase. As a word की सादा definition तो आप देख चुके थे. The word which modifies noun, ऐसा word जो noun की quality हो. The word which describes the noun, ऐसा word जो noun को describe करेगा वो ही adjective है, right? So you can say quality of noun, the word which shows the quality of noun. It is a quality of noun, right? लेकिन इसके different levels होते हैं. As a word, it has different levels. जब हम क्वालिटी कहते हैं तो हम कहते हैं कितनी क्वालिटी उसमें मौजूद है, राइट? सो वी कैन कॉल देम अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्वालिटी, वी कॉल देम डिग्री. इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर की भी डिग्री होती है, कि हाई टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया. इसी तरह क्वालिटी की भी डिग्री है कि वो भी किस हद तक, व्हाट विल बी द रेंज, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ दैट क्वालिटी. सो we can talk about degrees
of adjectives. There are 3 degrees. One is positive, second is comparative, and the last one is superlative. हमें इनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये ग्रामेटिकली डिफरेंटली बिहेव करते हैं, इनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है जब ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो एक तो हमें पता होना चाहिए, जैसे सिंपल वर्ड है, द वर्ड इज बिग, सो व्हाट विल बी बिगर, BIGGER एंड बिगर। तो आपने ये देखा कि ये 3 डिफरेंट वर्ड्स है और जहाँ पे बिग की ज़रूरत है वहाँ पे कभी भी आप बिगर नहीं यूज़ करेंगे, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इनकी नेचर को समझना ज़रूरी है। एक और वर्ड है LOUD, लाउड, और फिर है लाउडर और लाउडेस्ट। एक वर्ड है हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट और हैप्पीएस्ट। फिर एक वर्ड है गे, गे का मतलब ही हैप्पी होता है एज एडजेक्टिव। तो एज अ नाउन 2 मीनिंग है, एज अ गे एज अ नाउन वो होता है जो मेल फीमेल दोनों का मिक्सचर होता है। तो और एज एन एडजेक्टिव इट मीन्स हैप्पी। जब मैं कहता हूँ कि आई लिसन द गे सॉन्ग्स, तो गे सॉन्ग्स से मतलब हैप्पी सॉन्ग, सॉन्ग की वो खूबी बन रहा है, एज एडजेक्टिव इट मीन्स हैप्पी। सो द वर्ड इज गेयर, GAYER and GAYEST। ये मैंने 4 मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स लिखे हैं। अगर मेन डिफरेंस आप देखें तो उनमें क्या पाया जा रहा है मेन डिफरेंस, एक तो सेमनेस ये है कि ये सारे वर्ड्स कंपैरेटिव में ER पे खत्म हो रहे हैं और सुपरलेटिव में EST पे खत्म हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या हैं कि अगर मैं बिग को जब कंपैरेटिव बनाता हूँ तो डबल G करता हूँ, लाउडर का डबल D क्यों नहीं करता, ठीक है। उसके पीछे हमें रूल्स देखने होंगे क्योंकि जब आप लिख रहे होंगे तो इसमें मिस्टेक आती है स्पेलिंग की। तो जब आपको कंपैरेटिव की ज़रूरत है तो कभी डबल करना पड़ता है लास्ट स्पेलिंग को और कभी नहीं करना। देन यू कैन सी देयर इज द डिफरेंस बिटवीन डबलिंग द लास्ट लेटर एंड नॉट डबलिंग द लास्ट लेटर। जब आप इसको देखते हैं तो आप देखते हो कि एक कंपैरेटिव में हमने y की जगह पे क्या यूज़ कर दिया I, और दूसरे कंपैरेटिव में हमने y को नहीं छेड़ा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि y को फिनिश करना है या इसको लिखना है? तो ये भी एक तरह से स्पेलिंग की ही मिस्टेक स्टूडेंट कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गए ER और EST वाले कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब कुछ और एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ कि जैसे कि वर्ड है इंटरेस्टिंग, INTERESTING, लेकिन इसका इंटरेस्टिंग तो नहीं ना कोई यूज करूंगा, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। या इसमें हम ये भी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग, लेस इंटरेस्टिंग और लीस्ट इंटरेस्टिंग। तो अब लेस या मोर ये तो मीनिंग वाइज है। तो अगर तो किसी के कंपैरेटिव में हाइयर पोजीशन जा रही है या लोअर पोजीशन जा रही है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज आइदर मोर और लेस। For example, you can say this book is less interesting than the book I gave to you yesterday. तो ये किताब जो कल मैंने आपको दी थी उससे कम इंटरेस्टिंग या मोर इंटरेस्टिंग है, ये तो हमारी अपनी मीनिंग है। तो कंपैरेटिव दोनों के जरिए हो सकता है इस्तेमाल। लेकिन अब आ गए ये ER वाले हैं और EST वाले, और ये कौन से आ गए? मोर और मोस्ट वाले वर्ड्स, राइट। सबसे पहले हम ER EST में देखते हैं कि अगर CVC फॉलो किया जाए। CVC क्या है? कॉन्सोनेंट वोल कॉन्सोनेंट। ये सेट बन जाए कॉन्सोनेंट वोल एंड कॉन्सोनेंट। वोल तो आपको पता है AEIOU, और इनके अलावा जो स्पेलिंग्स होते हैं वो कौन से होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो आप देखिए B क्या है? कॉन्सोनेंट स्पेलिंग है, I क्या है? वोल है, और G क्या है? कॉन्सोनेंट। इस तरह एक और एग्जांपल दे देता हूँ, FIT, फिट भी एक एडजेक्टिव है,
लेकिन इसका कंपैरेटिव जब भी बनाऊंगा तो FITTER यूज होगा। अगर कोई भी वर्ड इस सेट पे खत्म होता है CVC पे, तो लास्ट स्पेलिंग शुड बी डबल। तो लास्ट स्पेलिंग को हम डबल कर देंगे। एंड अब देखें LOUD, तो इसमें तो CVC नहीं है ना, CVVC, कॉन्सोनेंट बॉल एंड कॉन्सोनेंट, तो CVC वाला रूल अप्लाई नहीं हुआ, तो हमने लास्ट स्पेलिंग को डबल नहीं करना। तो ये आप ध्यान में रखें, when CVC is there, last spelling is double. In making comparative and adjective, comparative adjective and superlative, last spelling is double. और जब ऐसा नहीं है तो भी डबल नहीं होगा, ये आपके सामने नहीं। फिर अब हैप्पियर और हैप्पीएस्ट क्या है, हमने देखना है Y से पहले क्या आ रहा है। इधर Y से पहले वॉल है, वॉल प्लस Y, और इधर कॉन्सोनेंट है, तो ठीक है कॉन्सोनेंट है, AEI और U से तो नहीं है, तो कॉन्सोनेंट प्लस Y। तो जब कॉन्सोनेंट प्लस Y होगा तो फिर Y को खत्म करके I हम यूज करते हैं। जैसे वर्ड है अगली, UGLY, इसका कंपैरेटिव UGLIER होगा या UGLYER होगा? IER होगा, क्योंकि L इधर क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट प्लस Y होगा तो हम क्या करते हैं, Y को रिमूव करके उसकी जगह पे I को यूज करते हैं। So if wall is there, then Y is not removed, right? ये जितने भी words थे, ये आपको सिलेबल का पता है, सिलेबल किसे कहते हैं? सिलेबल क्या चीज है? A part of word which is pronounced in one breath. A part of word, word का हिस्सा जो एक सांस में बोला जाए, word का हिस्सा जो एक सांस में बोला जाए उसे सिलेबल कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ interesting, ये 3 सांसों में बोला जा रहा है, तो मेरा 3 syllables, ठीक है। ये जो E और EST का फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है? 1 and 2 syllable रेंज वाले वर्ड्स। अगर 3 syllables हो जाएंगे फिर ER EST वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, फिर मोर और मोस्ट वाला रूल अप्लाई होगा। 3 or more syllables, 3 syllables आ जाए, 4 आ जाए, इससे कितने भी ज्यादा हो जाए, तो कंपैरेटिव मोर और मोस्ट से बनेगा। तो with 1 and 2 syllable words, उसके लिए E और EST वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ER and EST यूज फॉर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज व्हेन द वर्ड इज 1 syllable और 2 syllable। तो आप देखिए, बिग एक सांस में बोला जा रहा है, लाउड एक सांस में बोला जा रहा है, हैप्पी हैप्पी 2 में बोला जा रहा है, गे 1 में बोला जा रहा है, CLEVER, क्लेवर, तो क्लेवरर क्लेवरस्ट, ठीक है। तो जब भी ये रूल अप्लाई होंगे हमने ER और EST यूज करना है। हमारे पास वर्ड है क्विक, QUICK, तो क्या होगा, क्विकर एंड क्विकेस्ट। तो अगर ये वर्ड आ जाए informative, more informative and most informative, this book is the most informative book in this room। एक किताब रूम में एक लिमिट लगा दी कि इस रूम में जितनी भी किताबें हैं, ये किताब सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव, मोस्ट या लीस्ट कह सकते हैं, ठीक है, सबसे कम। ओके, सो यू हैव नाउ गॉट द रूल। जब सिलेबल मीन्स a part of word pronounced in one breath, एक सांस में, ब्रेथ सांस को कहते हैं, एक सांस में बोला जाने वाला पार्ट ऑफ वर्ड, उसको सिलेबल कहते हैं। तो इसकी बुनियाद पे सारे हमने ER या EST को डिसाइड करना है, या मोर और मोस्ट को प्लस लीस्ट को मीनिंग के हिसाब से चेंज होगा। और ER EST के अंदर ये छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं जो हमने देख ली है कि when to double the last letter and when to remove Y. Hopefully it is clear. So it is up to word. अब हम देखते हैं इसका grammatical use। जब भी हम comparative degree यूज करते हैं
तो इसके बाद हमने दैन का वर्ड यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कह सकते कि दिस टावर इज बिग दैन माई ऑफिस, कि ये जो टावर है मेरे ऑफिस से बड़ा है। बिगर दैन, बिग दैन नहीं होगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव डिग्रीज के साथ हम दैन नहीं यूज करेंगे। दैन का जब भी यूज करना है आपने कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करना है, और अगर आप नहीं यूज करते तो सेंटेंस ही गलत है। फॉर एग्जांपल यू से दैट दिस बिल्डिंग इज बिगर, आपको पूछेगा किससे बिगर, ठीक है, बिगर दैन, आपने दैन का यूज करना ही करना, ठीक हो गया। फिर एक और ग्रामेटिकल यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो चीज़ों का कंपैरिजन आ रहा है, जैसे आप कहते हो माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस। यहाँ पे हमने एक ये हाउस है और एक ये हाउस है। एक चीज़ है, इसमें हमेशा कंपैरिजन दो चीज़ों का होगा, टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। अगर मैं कहता हूँ कि माई हाउस इज बिगर देन दीज 4 हाउसेस, तो ये गलती है। तो फिर आपने कहना है कि माई हाउस इज द बिगेस्ट अमंग, देन क्या आएगा, अमंग दीज 4 हाउसेस, राइट। तो इसका मतलब है जो बिगर देन है हमेशा ये कंपैरिजन भी दो चीजों के दरमियान होगा, वन हाउस ऑन द वन साइड एंड अनदर हाउस ऑन द अदर साइड। सो यू कैन से टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। रूल वाइज हमने ये भी देख लिया कि टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय कंपैरेटिव डिग्री, नॉट द 3 or 4 or more than वी यूज दैन, ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी। चीज़ों का कंपैरिजन हो गया, ठीक है। जब हम प्रोनाउन का कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि आई एम टॉलर दैन ही, अच्छा आपको क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, राइट। अब ये एग्जांपल्स लिख चुके हैं, तो आई कैन आई एम टॉलर देन ही। एक सेंटेंस है आई एम टॉलर देन हिम, तो कौन सा ठीक होना चाहिए, सेकंड वाला। ज़्यादा स्टूडेंट यही करेंगे सेकंड वाला है, लेकिन ये गलत है, ये ठीक है। जब भी प्रोनाउंस का कंपैरिजन होगा, देन के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा। अब मैं आपको इसको रिमूव करके, चूंकि आप ये लिख चुके हैं, मैं आपको प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चीज़ें बता देता हूँ। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, इट, ही और शी, ये होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, राइट। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, और बाकी ये सारे थर्ड पर्सन हम इन्हें कहते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है, मी, और वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का दैम बन जाता है, और इट का इट होता है, और ही का हिम होता है, शी, हर। लेकिन अब आपने रूल क्या पढ़ लिया है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री आ जाए और देन आ जाए और आपको तो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से चूज करना पड़े, तो आपने ये वाला चूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आई टीच हिम। अब हिम ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि तो कोई कंपैरेटिव डिग्री यूज ही नहीं होगी। तो हमें पता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही हम लगाते हैं, तो हमने हिम लगा दिया, ये ऑब्जेक्टिव केस। और टीच के बाद अगर जिसे भी पढ़ाना है तो हम इधर से सिलेक्ट करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। लेकिन जब ये कंपैरेटिव डिग्री आ जाए और देन का इस्तेमाल हो जाए ये, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लेना है। मैं ये कह सकता हूँ आई एम टॉलर देन दे, कह सकता हूँ कि मैं उनसे बड़ा हूँ, देन नहीं यूज करूँगा। देखने में ये स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ये मिस्टेक हो जाएगी अगर आप कॉमन चीज़ों को देखेंगे, ये मिस्टेक हो जाएगी इफ यू आर यूजिंग ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर देन। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि देन रिक्वायर्स सब्जेक्टिव प्रोनाउन इन कंपैरिजन विद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बदले में आपको सब्जेक्टिव यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं सेंटेंस यूज करता हूँ कि आई एम टॉलर देन
माई ब्रदर, तो माई तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही है, इसको छोड़ दें, वो तो माई ब्रदर हो, ठीक है। उस वक्त भी आपने ज़हन रखना माई की प्रोनाउन है तो माई की यूज करूँ मैं यहाँ पे आई कर दूँ, वो नहीं, ठीक है ना। सो वो एक अलग, हम कह रहे हैं कि इसके मुकाबले में हमें ये चाहिए। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। तो जब आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एज अ होल, पोसेसिव की बात नहीं कर रहे, पोसेसिव हमें पिछले क्लास में पढ़े थे, उनको निकाल, उसमें कंफ्यूज नहीं आप हमने तो बात, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के मुकाबले, ऑब्जेक्टिव के ऑपोजिट हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करना है आफ्टर द यूज ऑफ दैन इन द कंपैरेटिव डिग्री। ये बात भी क्लियर होगी। ये कुछ रूल्स है, मैंने कहा था कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं, चाहे पॉजिटिव हो, कंपैरेटिव हो, सुपरलेटिव हो, ये अपना रोल, अपना बिहेवियर रखते हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ है। कंपैरेटिव का ये बिहेवियर, तो अभी तक आपने कंपैरेटिव के 3 रूल्स देख लिए। एक तो दो के दरमियानी चीज़ों में कंपैरिजन होना है, 3 आ जाएगी तो समझ लें हम सुपरलेटिव यूज करें, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड आल्सो फॉर कंपैरिजन बट बिटवीन वन एंड मेनी अदर। ये नहीं है कि कंपैरेटिव डिग्री ही बस कंपैरिजन के लिए है, सुपरलेटिव डिग्री भी कंपैरिजन के लिए है, लेकिन वो कंपैरिजन क्या होता है, बिटवीन वन थिंग एंड मेनी अदर, नॉट द वन अदर, मेनी अदर। 2 हो सकती, 3 हो सकती हैं, टोटल जो चीजें हैं वो 2 से ज्यादा होंगी, वो कंपैरिजन हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि मिस्टर अहमद इज द टॉलेस्ट बॉय अमंग अस, कह सकते हैं। अमंग के साथ हमने वो बी वाला सूट नहीं करना, वो दैन के साथ अटैच, सही है, अमंग अस है। अच्छा, या हम कह सकते हैं लिमिट लगा सकते हैं, अस की भी लिमिट लगा दी है तो जो इधर सुन रहे हैं वो है। तो आप ऐसे भी लिमिट लगा सकते हैं कि मिस्टर अहमद इज द टॉलेस्ट गाय ऑफ दिस क्लास, ऑफ दिस विलेज, ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये लिमिट हम खुद लगाते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि माई हाउस इज द बिगेस्ट हाउस इन दिस स्ट्रीट, हो सकता है इस स्ट्रीट में मुझसे भी बड़ा हो, उसकी बात ही नहीं करना, तो लिमिट हमने खुद वहाँ पे लगानी होती है कि कितनी रेंज के अंदर वो सबसे बड़ा। तो जब हम सबसे बड़ा कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी चीज़ें सबसे बड़ा, वो लिमिट हमने खुद एक्स्ट्रा फ्रेज के जरिए ऐड करनी होती है। Just like I've given you example, my house is the biggest house in this street. वो street की लिमिट है, या in this village or in this city or in this country. Understand this thing? So we will put the limit. और फिर एक और चीज़ कि आर्टिकल द कंपल्सरी होता है इससे पहले। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द कंपल्सरी है। अगर आप कहते हो कि this is highest mountain in Africa, no, this is the highest mountain in Africa. हाई तो हाईएस्ट भी क्या है, हाई, हायर, हाईएस्ट, सुपरलेटिव, तो आपने सबसे पहले द आर्टिकल लगाना है। ठीक हो गया जी, आप पूछना चाहते सर ये जो सुपरलेटिव डिग्री है जी, इसके साथ लिमिट लाजमी है, इसके साथ लिमिट लाजमी नहीं है। जब आप लिमिट लगाएंगे तो आप अपने मीनिंग को क्लियर ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप लिमिट नहीं लगाते तो एट ए टाइम जो भी समझने वाला उधर समझ सकता है कि और बाज़ इस तरह भी होता है कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी लिमिट लगी होती है। कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आप कहीं में जाते हो, किसी शहर में, किसी गांव में, तो आपका दोस्त आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप वहाँ पे पहली दफ़ा गए हो तो आप कह दिस इज द बिगेस्ट हाउस, तो आपको पता है इस एरिया की बात हो रही है। लेकिन अगर लगा देंगे तो मजीद बात क्लियर हो जाएगी। सर ये जो कंपैरेटिव डिग्री इसके लिए तो एसेंशियल आना ये हाँ, इसके लिए एसेंशियल है, इसके लिए एसेंशियल है। सुपरलेटिव सुपरलेटिव के लिए एसेंशियल नहीं है। जब आप कोई लिमिट नहीं लगाते तो जनरल बात है, फिर वो सबसे बड़ी होती है। कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना, छोटी क्लासों में होता है कि ही इज द बेस्ट टीचर, तो यानी कि ये बेस्ट टीचर है, यानी कि उसके लिए कंपैरेटिव नहीं मिला। हाँ, he is the best teacher, like the best, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगाना है, he is the best teacher of my school। अगर आप स्कूल नहीं भी यूज करते तो आप कितने टीचर से पढ़े हुए हैं? सर मैं मैं एक मिनट बात सुन, आप फर्ज किया 50 टीचर से पढ़े हुए हैं, तो अंडरस्टूड है कि आपका रिलेशन जिनसे होगा उन्हीं की बात ही कर रहे हैं। हाँ, तो वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही सेंस होती है कि आपके नजदीक इज द बेस्ट, फाइन। और फिर उससे मैं अगर मीनिंग ड्राइव करूँगा, इसका मतलब ये होगा कि आप जिन जिनसे पढ़े हुए हैं उसके जगह 10 तो बेशुमार टीचर। जी, आप पूछ रहे हैं। We should use and follow them. हाँ हाँ हाँ, This why you use
हाँ. she or he. Okay, from if you've been studying from your childhood, from your earlier classes that I am taller than her, I am taller than him, तो वहाँ पे वो गलतियाँ पढ़ रहे थे और किताबों में ये अगर लिखा दिखा तो वो गलत है. Sir, what's the reason behind that? What's the reason behind that? एक्चुअली जब हम ग्रामेटिकल रूल्स की बात करते हैं तो लैंग्वेज में रीजंस तलाश करना जो होता है ना ग्रामेटिकल रूल्स से वो नामुमकिन ही होता है. ठीक है, वो होता ही नहीं है. अगर आप कहते हो कि हम सुपरलेटिव से पहले दाव लगा रहे हैं बाकियों के लिए नहीं लगा रहे, क्या रीजन है? Sir, in this way we can't say that that one is not correct. In this way you can say according to your knowledge this is not correct. लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ तैयारी करेंगे तो वहाँ पे वो गलत है. That's what I'm saying. तो हमारा बिल्कुल मैंने पहले कह दिया था कि ज़्यादातर लोग कहेंगे यही ठीक है क्योंकि हम पढ़ते ही है. बट दिस इज अ मिस्टेक. सर इसमें ऊपर वाला भी पढ़ा हुआ है आपकी ग्रेटनेस है जो ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है जी. आई एम taller than he, हाँ. सर सेंस नहीं दिखा रहे. हाँ वो और इसलिए लगता है कि आप हैबिचुअल नहीं है. अगर हैबिचुअल होंगे ना फिर आपको नहीं और लगेगा क्योंकि मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स भी यही पढ़ाते हैं और यही कुछ पाकिस्तानी ग्रामर की बुक्स में है. लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे जैसे मैंने एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश कहा वो भी पाकिस्तानी राइटर ने लिखी है, आपको ये चीज़ उधर भी मिलेगी. ठीक है, कि ही ठीक है. सर इसमें आई एम taller than he is, अगर is भी लिखा जाए तो ये ग्रामेटिकल गलत है. हाँ, ये he is जहाँ तक ये बात आई है कि दैन के साथ हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हुए उसको की डिटेल आगे वर्ब के साथ कर दें तो यहाँ पे जहाँ तक दैन का ताल्लुक है आप नहीं लगा सकते. कुछ और फ्रेजेज हैं जब हम एज का इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करते हुए फिर हमें लगाना पड़ता है. मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये तो नोट कर लिया. सो शुड आई रेज अरे ये लास्ट पॉइंट है मुझे 5:45 इज देयर. एक होता है डिफरेंट कंपैरिजन. और एक होता है सिमिलर कंपैरिजन. डिफरेंट कंपैरिजन से आपको पता है कि जब मैं कहता हूँ कि आई एम टॉलर दैन ही तो इसका मतलब फर्क सेम नहीं. तो कंपैरिजन इक्वल भी हो सकता है ना. तो इक्वल कंपैरिजन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट ये तो हो गया कंपैरेटिव डिग्री. डिफरेंट कंपैरिजन के लिए इक्वल कंपैरिजन के लिए हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं और उससे पहले एज लगाते हैं और बाद में भी एज लगाते हैं. तो मैं क्या कहूँगा आई एम एज टॉल एज ही इज कि मैं उतना ही बड़ा हूँ जितना मतलब हमारे डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटी जब हो. ठीक है, दो चीज़ों में सिमिलैरिटी पाई जाएगी तो आपने पॉजिटिव डिग्री यूज करनी. अब क्लियर हो गया, उसमें हम यूज करते हैं एज ही इज. सर भाई पूछ रहे थे कि आई एम taller than he is बन गए. हाँ वो नहीं सर, जो होता है ना हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज और एम, ये अकेले कभी नहीं आते. इनके अगर लफ्ज होगा तो फिर पीछे ये हेल्पिंग वर्ब आएगा. इज कभी ग्रामर में अकेला नहीं कभी आता. इज ना और एम है इस तरह का लफ्ज अकेले नहीं आते. इनका अगर लफ्ज होगा फिर पीछे आते हैं. ठीक है, चलिए वो भी क्लियर करूँगा. अब अलग आ सकते हैं लिंकिंग वर्ब भी देन दैट आप सारे की हाँ ठीक है, वो बता देता हूँ. राइट, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखें. द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज cooler than दैट आप मुल्तान. अल्लाह को इंसान है. कान के आगे दीजिए बड़ी मुल्तान थोड़ा हाई सिपी कर लो, लेकिन हम दैन सिपी नहीं करेंगे. सही मुल्तान ठीक है, वहाँ से लफ्ज आ रहा है. चलो सिपी भी अगर करते हैं या मुल्तान करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो गया. उसकी वजह ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों चीज़ें हम पल्ला होनी चाहिए. हम शहर का शहर के साथ कंपैरिजन कह सकते हैं,
मैं ये कह सकता हूँ कि लाहौर इज कूलर दैन सिद्दीकी, ठीक है, लेकिन मैं लाहौर का नहीं कंपैरिजन कर रहा बल्कि किससे कर रहा हूँ, क्लाइमेट दैट ऑफ। तो फिर क्या करना पड़ेगा, द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज कूलर दैन द क्लाइमेट ऑफ सिद्दी या देन दैट ऑफ सिद्दी। दैट ऑफ सिद्दी से मुराद भी क्या बन जाएगा, देन द क्लाइमेट ऑफ सिद्दी। तो अब अगर तो डायरेक्टली लाहौर आ जाता तो अगर मैं लाहौर इज कूलर दैन दैट ऑफ सिद्दी, फिर ये गलत हो जाना था। इसका मतलब है दोनों चीजें हम पन्ना हो। क्लाइमेट का शहर के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, शहर का शहर के साथ, क्लाइमेट का क्लाइमेट के साथ। तो यू कैन से द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज कूलर देन दैट ऑफ सिद्दी या मुल्तान, जो भी आप पढ़। तो दैट अगर ये चीजें जमा हैं, फॉर एग्जाम्पल द बुक्स ऑफ अली आर हैवियर देन दोज ऑफ माइन, तो बुक्स की बात हो रही है, मैं बुक्स का अपने साथ तो कंपैरिजन नहीं कर सकता। बुक्स का किससे करूंगा, बुक्स के साथ, क्यों, उसकी भारी हैं, हैवियर हैं। तो मैं कहूँगा द बुक्स ऑफ अली आर हैवियर दैन दैट ऑफ माइन, कि मेरी वाली मेरे से नहीं बड़ी है, मेरे से ज़्यादा हैवी नहीं है, बल्कि मेरी किताबों से, दैन दोज ऑफ, दैट इसलिए यूज होगा क्योंकि किताबें जमा हैं। तो दैट सिंगुलर के लिए, और किताबें चूँकि प्लूरल बन जाएगा तो माइन, माइन, माइन से मुराद मेरी, देन दोज ऑफ माइन। अच्छा, चूँकि मुझे भी अगर क्लास करनी है 5:30 में क्लास शुरू हो जाती है मेरी आइल्स की, सो आई हैव टू रीच देयर, सो आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। तो एक चीज़ है कि आई डोंट नो, थोड़ा स्केड्यूल इसका भूल जाता है इंग्लिश के लिए कि 10-15 मिनट लेट ही मुझे टाइम मिलता है। आज तो 25 मिनट हो गए थे, तो मैं नहीं कुछ कह सकता, आप भी कुछ कर सकते हैं या तो आप कह दें, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए होता है चीज़ों को समझने के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए। सो दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? इंशाल्लाह वी विल इससे लेकिन ग्रामर से लेकर ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं हैज यूज होता है, जी जी, इसका थोड़ा सा कारण है, इसका मीनिंग क्या बनता है और किस सेंस में यूज होता है? तकरीबन को 20 मिनट चाहिए। जी Sir, initially you categorize adjective as a word and हाँ, हमने सिर्फ एज अ वर्ड बात की है, अभी फ्रेज नहीं है, फ्रेज ऑफ कोर्स कल की क्लास। Sir, you describe word as a quality. यस, Isn't it related with quantity? ओके, क्वालिटी के बहुत सारे पहले के फीचर्स हैं, क्वांटिटी भी उसकी क्वालिटी ही होती है। Quantity is something else. नो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट 2 books, तो बुक्स का फीचर वहाँ पे क्या है, क्वालिटी मीन्स अ काइंड ऑफ फीचर, तो वहाँ पे उन बुक्स का क्यों फीचर है? Sir, like at that time I have 2 books. सर That क्वालिटी, is quantity. सर क्वालिटी होने की चीज़ की ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ In the sense I'm saying. ਮਿਆਰ, क्वालिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि तादाद। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, दैट इज वेरी। बुक्स में बड़ी शॉर्ट डेफिनेशन लिखी होती है जीपीटी, अ वर्ड दैट Describe क्वालिटी, लेकिन इसमें उसका जो है वो क्वांटिटी, नंबर, साइज, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव्स की टोटल जो कैटेगरीज है ना वो 11 है, जिसमें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव अलग है, डिस्क्रिप्टिव अलग है, डिस्क्रिप्टिव अलग है। तो ये सारे ही इस नाउन के फीचर्स होते हैं। So generally we can say that it also includes quantity. Yes, it includes quantity, it also includes possession, it includes definite thing. तो 11 इसकी मुख्तलिफ किस्म। जी आपने उसको ऐसे को थोड़ा टच कर दिया, ऐसे को, ठीक है, आप ऐसे करना चाह रहे हैं तो ऐसे के लिए मैं Sir, a word. आपको इंशाल्लाह कल